Hello, good morning. Am I audible clearly? I hope. Students, there will be a meeting of principals and vice principals and technical team today for you. FY students, you will be informed about the link in your groups. You have to attend that meeting to understand the credit system. Okay. So please do attend. It will be in the afternoon or evening. Okay, this is the message from principal. So I am announcing you. Now you have already appeared for your semester 1 and exam. Now your semester 2 starts from today. Okay. Hello Purnima, you have any question? You raise your hand. Or it is by mistake. You can unmute yourself and ask if you have any question. मैम Yes. विच मीटिंग किस मीटिंग के बारे में बात कर रहे हो आप? आज एक आफ्टरनून में 3 से 5 के बीच में एक मीटिंग होने वाली है, ऐसा प्रिंसिपल सर ने टीचर्स को मैसेज भेजा है एफवाई के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली। ओके, तो आपको लिंक भेजा जाएगा आपके ग्रुप्स में, इसलिए मैं अनाउंस कर रही हूँ। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। हाँ, आई एम क्लियरली ऑडिबल टू ऑल स्टूडेंट्स नो? अच्छा, I have to, you must have received various notices related to research activities, research advisory committee and speakers forum also. There is a competition, elocution competition on 24th January, where you have to only speak, no PowerPoint presentation is needed. You have to only speak either in Hindi, English or Marathi, whichever language you are comfortable with. 3 to 5 minutes, the 4 or 5 topics are given. You can choose any one topic. Please fill the registration form. Last date is 20th January. Besides, you have also got notices related to Research Advisory Committee, which is there is one event which is on 28th January, which was supposed to be on 18th January, but it has been postponed. It's on 28th January. And you have been announced one event, that is students project presentation. So you have to fill up the information for that. You can choose any topic and make PPT, and you can announce. Oh, sorry, you can make presentation. You can choose any topic from any subject. Okay, student project presentation is the topic. Here you can choose any topic. This event actually was to be on 18th, but has been postponed. It's postponed to 28th January. So actually last date for registration was 10th January, but I think the form is still open for accepting the registration. So those who are interested, see, whatever events are organized in the college, these events give you opportunity not only to learn from others, but to develop your personality. So please participate. All the events are for students only. Okay.
and because I am in both the committees, research advisory as well as student speakers forum, so if you have any queries you can ask me as well, okay, within the lecture even. If any student is willing to participate, can ask me. हेलो, किसी को कुछ पूछना है? रिसर्च एडवाइजरी कमेटी के 2 इवेंट है, एक नेशनल साइंस डे वाले दिन है 28 फरवरी को, ठीक है। उसमें आप अपने सब्जेक्ट में से जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो कोई भी एक टॉपिक चूज करके उससे रिलेटेड कर सकते हो। तो जिसको पार्टिसिपेट करना है उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन एक्सेप्टेंस हो रहा है, ठीक है। लिंक आप लोगों को आपके व्हाट्सएप ग्रुप में नोटिस के साथ भेजा गया है। एग्जैक्ट क्या करना होगा हम लोगों को? हाँ, उसमें एग्जैक्ट क्या करना होगा? कौन से इवेंट में पूछ रहे हो? जो अभी आपने बोला। एक स्टूडेंट प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन है जो 28 जनवरी को है, ठीक है। यस। और एक अनुसंधान है नेशनल साइंस डे पे, वो 28 फरवरी को है। दोनों इवेंट्स में आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है, ठीक है। ओके। कोई भी एक टॉपिक चूज करो, आपके सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हो उससे रिलेटेड, ठीक है। और मैम देन वो ऑनलाइन हम लोगों को शेयर करना होगा प्रेजेंटेशन? हाँ, अभी क्योंकि कॉलेज तो 15 फरवरी तक बंद है ना। यस मैम, यस। तो 28 जनवरी वाला ऑनलाइन ही होएगा, और उसके अलावा 28 फरवरी वाला भी मुझे मालूम नहीं तब तक ऑफलाइन अलाउड होगा कि नहीं होगा। ओके मैम, थैंक यू। तो अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप मेरे को पूछ सकते हो, ठीक है। टॉपिक क्या चूज करना है, टाइटल क्या लिखना है, फॉर्म ध्यान से भरो। मैम हाँ बोलो बोलो। हेलो दिलशाद, यू वांटेड टू से समथिंग? हेलो हाँ बोलो। जी मैम, आप रिटर्न बोलिए ना, मैं आपकी बात नहीं समझ सका पूरी। रिटर्न मीन्स? जो बताया ना फिर से बताइए ना। अच्छा, उसको रिटर्न नहीं बोलते ना। अरे मतलब वापस से बताइए मैम। हाँ वो समझ गई, मैं बता रही हूँ, करेक्ट कर रही हूँ, मैं कम्युनिकेशन स्किल भी सिखाती हूँ ना। रिटर्न नहीं बोलते उसको, उसको बोलते रिवाइज करो और से अगेन, ठीक है। यस। हाँ, कम्युनिकेशन स्किल्स में मैं आपको कम्युनिकेट करना नहीं सिखाऊंगी तो फिर क्या फायदा है ये पेपर सब्जेक्ट पढ़ाने का मुझे, ठीक है ना। So I am repeating again, there is one event which is on 28 January, ठीक है, which is by Research Advisory Committee। उसमें आपको अपने सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आप हिंदी, इंग्लिश, मराठी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जो भी सब्जेक्ट आपने लिए हुए हैं उनमें से किसी भी एक टॉपिक पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हो। कुछ समझना हो तो मुझसे पूछ सकते हो। फॉर्म भरते हो, उसमें नेम ऑफ द टीचर पूछा है तो करेक्ट नेम भरो। आप अपने जो भी सब्जेक्ट का टॉपिक चूज कर रहे हो, आप अपने उस सब्जेक्ट के टीचर से पहले सलाह मशूरा करो कि ये टॉपिक सही है या नहीं है, ठीक है, और फिर फॉर्म भरो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नहीं मैम, फिर से नहीं समझ सका मैं। आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट है, चलो मेरे को बताओ। मैम मेरा मतलब ये बोलने का है कि देखिए, जो भी सब्जेक्ट है मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद उसी टॉपिक के रिलेटेड बोलना है, मुझे परफॉर्मेंस करना है। आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल मुझे बताओ। FC। FC और CS तो कंपलसरी है, वो छोड़ दो। उसके अलावा मैं FC सेलेक्ट करूंगा ना, FC पे ही मैं टॉपिक वो करूंगा। अच्छा, FC से टॉपिक लेना चाहते हो? क्या टॉपिक लेना चाहते हो FC से, फॉर एग्जाम्पल? स्टेटस ऑफ वुमेन राइट्स। अच्छा, स्टेटस ऑफ विमेन्स राइट्स, करेक्ट। यस मैम। अभी देखो, विमेन्स राइट्स के टॉपिक पे आपको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू? यस। अगर आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने में कुछ डिफिकल्टी आ रही है तो आप मुझसे या FC के टीचर से पूछ सकते हो, ठीक है मैम, ठीक है। अच्छा, अभी आप अगर 28 फरवरी के इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो सपोज,
तो आप सेम टॉपिक नहीं चूज कर सकते प्रेजेंटेशन के लिए। जो आप 28 जनवरी को प्रेजेंट करोगे वही सेम टॉपिक आप नहीं चूज करोगे, ठीक है? मैम जी। डिफरेंट टॉपिक चूज करो। और किसी को कुछ पूछना है उसमें इंफॉर्मेशन सही भरो। टॉपिक, नेम ऑफ द टीचर, गाइड टीचर, क्लास। क्लास आपका FYBA सब्जेक्ट। आप सब्जेक्ट, कुछ लोग सब्जेक्ट में FCCS सब लिखते हो। अरे एक सब्जेक्ट लिखो कोई भी जिसमें आप प्रेजेंट कर रहे हो, वही सब्जेक्ट लिखा जाना चाहिए, ठीक है? और किसी को कुछ पूछना है? मैं लेक्चर स्टार्ट करूं? यस मैम। और आज का मीटिंग जरूर अटेंड करना है। आपको लिंक आएगा 3 से 5 के बीच में मीटिंग होगी वो, ठीक है? प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल। और इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। यस मैम। सो आई एम नाउ स्टार्टिंग विद माय लेक्चर। अभी आपने सेमेस्टर 1 में कुछ टॉपिक्स किए थे ग्रामर के, करेक्ट? आप लोगों को FYBA CS का सिलेबस ग्रुप में भेजा गया था। सबके पास सिलेबस की कॉपी है ही, ठीक है? गूगल क्लासरूम सबने ज्वाइन किया ही हुआ है, ठीक है? तो अभी आपको CS में क्या पढ़ना है? सेकेंड सेमेस्टर में लेट अस अंडरस्टैंड दैट। अभी आपको है बेसिक लैंग्वेज स्किल, स्पीकिंग स्किल, टेक्निकल स्किल एंड समराइजेशन एंड नोट मेकिंग। 4 टॉपिक्स हैं आपको, 4 यूनिट्स हैं, सॉरी। लाइक लास्ट फर्स्ट सेमेस्टर के जैसे सेकेंड सेमेस्टर में भी आपको 4 यूनिट्स हैं। इज इट क्लियर? आपको मेरी बात समझ आ रही है सबको? तो अभी आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ यूनिट। फर्स्ट यूनिट जो है वो आपकी ग्रामर बेस्ड यूनिट है, ठीक है? सेकंड जो है वो आपकी स्पीकिंग स्किल्स से रिलेटेड है। थर्ड टेक्निकल स्किल्स है, ईमेल राइटिंग एंड ब्लॉगिंग। एंड फोर्थ समरी राइटिंग एंड नोट मेकिंग। ये 4 यूनिट हैं आपकी, ठीक है? बिकॉज आई एंगेज 3 lectures in your class, so I will be teaching you 3 units. ठीक है? Let me share the syllabus with you so that you can understand what is what in the syllabus. मैं आपको बता रही हूँ, सिलेबस शेयर कर रही हूँ आपके साथ, so that you will be able to understand how to read, how to study for your exams, ठीक है? कितने स्टूडेंट्स, कोई स्टूडेंट ऐसा है जो ग्रुप में नहीं है? FYBA ABC 3 ग्रुप बनाए हैं ना डिवीजन वाइज। आप लोग उस ग्रुप में हो ना? सब लोग ऑफिशियल ग्रुप में?
सबके पास इंफॉर्मेशन आती है ना कॉलेज की तरफ से, सब इंफॉर्मेशन। मीटिंग का भी इंफॉर्मेशन ग्रुप में ही आएगा आपको, लिंक, जूम लिंक शेयर करेंगे। Okay, so let me share the syllabus with you so that you can understand what is your syllabus for CS. And see whether it's अच्छा। आपको मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में ग्रामर के टॉपिक्स करवाए थे ना सबको? किसी को कुछ ऐसा है जो समझ नहीं आया? इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं अभी भी आपको ग्रामर करवाने वाली हूँ। तो कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको कोई टॉपिक समझ नहीं आया हो? क्योंकि ग्रामर अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हो और सेकंड सेमेस्टर में उससे ही रिलेटेड कुछ ना कुछ रहेगा, तो अगर आपको नहीं समझ आया है तो आप मुझे पूछ सकते हो। मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ सिलेबस का, ठीक है? Let me see if you are able to understand whatever is there in the syllabus and why, how we have to go about it. थोड़ा आज इंटरनेट का इश्यू आ रहा है लग रहा है। All of you must have done all these things na, prefix, suffix. Have you done all these things earlier? Prefix, suffix, antonym, synonym. किया है या नहीं किया है? किया ही रहेगा ना? Hello, have you done all these things? स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। I don't know why it's not happening. I'm stopping sharing once because screen share क्यों नहीं हो रहा है? हम नेट प्रॉब्लम है बहुत। हाँ, कुछ ऐसे लग रहा है, बहुत स्लो चल रहा है शायद। बट मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में सब वीडियो भी शो किया था स्टूडेंट्स को। So I don't know what's happening. ओके, चलो मैं तब तक व्हाइट बोर्ड पे बताती हूँ आपको। So as earlier, your syllabus is divided into semester 2 also. For CS, your syllabus is divided into 4 units. Okay.
CS, that is communication skills. Okay, and it's syllabus for semester 2. So it's divided into, there are 4 units. Okay, as I will be engaging 3 lectures in your class, so I will be teaching you 3 units. Okay. Now, it's not happening only. So the syllabus is divided into 4 units. First unit is your basic grammar. Okay. Which is your unit 1. Second unit मैं- is, yes, 4 करा दिए है ना, क्या? यूनिट 4 हो गया है ना, ये जॉब एप्लीकेशन, RTI एप्लीकेशन, अरे ये ये सब। फर्स्ट सेमेस्टर का नहीं बात कर रही हूँ ना, अभी सेकंड सेमेस्टर हो गया ना आपका शुरू। अच्छा ठीक है फिर। अभी सेमेस्टर सिस्टम है ना, इट्स नॉट ईयरली पैटर्न ना। स्पीकिंग स्किल्स, ठीक है। थर्ड यूनिट इज टेक्निकल स्किल्स। And fourth unit is summarization and note making. ठीक है, ये सेमेस्टर 2 का मैं बता रही हूँ आपको। वो जो आपने एग्जाम दिया है उसके साथ आपका सेमेस्टर 1 एंड हो गया। अभी ये सेमेस्टर 2 है, इसके बेस पे आपका अगला एग्जाम होगा, इंटरनल्स और एक्सटर्नल। ठीक है, आर यू गेटिंग, एवरीबडी इज गेटिंग मी? मैम सेकेंड सेमेस्टर के साथ इसको भी मेंशन करना, इंक्लूड करना है ना उसके साथ। किसको? ये आप यूनिट 2 को, सेमेस्टर सेकेंड को जो आप पढ़ा रहे हैं। हाँ, वो सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर ओवर हो गया ना अभी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am. आपने जो अभी तक पढ़ा था ना एग्जाम से पहले, वो सेमेस्टर 1 का सिलेबस था। क्लियर? यस मैम। अभी जो मैं करवाऊंगी या दूसरे टीचर किसी भी सब्जेक्ट में करवाएंगे, वो सेमेस्टर 2 का सिलेबस रहेगा। आपको बात समझ आ रही है सबको? मैं समझ गया। Yes, ma'am. हाँ, समझ गया मैम। आर यू एबल टू सी द सिलेबस? राम निरंजन झुंझुनवाला कॉलेज ऑटोनॉमस दिखाई दे रहा है प्रपोज सिलेबस स्क्रीन पे? नहीं मैम। नहीं दिखाई दे रहा है, एक मिनट। No, ma'am. नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ आज इश्यू आ रहा है इंटरनेट का, आई थिंक, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। तो मैं आपको
आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ये सिलेबस शेयर किया है, ठीक है मैडम ने, जब भी सेमेस्टर 1 शुरू होने से पहले ही। तो बेसिक ग्रामर, speaking skills, technical skills, summarization and note making. So first unit is about various grammar topics. Then second unit is what? Pronunciation. When you speak, what you should keep in mind. Okay. And third is email writing and blogging. Nowadays blog is very important and similarly email is also important. ठीक है ना? तो ईमेल और ब्लॉग में क्या डिफरेंस है वो आपको पता चलना चाहिए ना, इसलिए आपको वो सिखाने के लिए ये सब टेक्निकल स्किल्स, how to write an email, how to write a blog, then summary writing and note making, what you should do when you summarize message and how to make notes. आप पढ़ते हो ना तो उसके लिए नोट्स बनाते हो, तो नोट्स कैसे बनाने चाहिए ये भी आपको, उसमें नोट कैसे बनाना चाहिए वो आपको पता चलता है, ठीक है? इज इट क्लियर टू यू? 4 Yes. यूनिट्स कौन सी हैं, समझ आ रहा है आप लोगों को या नहीं समझ आ रहा है? Yes, ma'am. तो अभी फर्स्ट यूनिट जो है बेसिक ग्रामर के, उसमें क्या टॉपिक्स है मैं आपको बता रही हूँ। बेसिक ग्रामर स्किल्स में फर्स्ट टॉपिक जो है वो है एंटोनिम सिनोनिम। एंटोनिम सिनोनिम। सेकेंड टॉपिक है प्रीफिक्स सफिक्स रूट वर्ड्स। थर्ड है होमोफोन्स होमोनिम्स। देन कोलोकेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच एंड वॉइस, ठीक है? देन सेकेंड टॉपिक है स्पीकिंग स्किल्स, ठीक है? एंड देन थर्ड टॉपिक है टेक्निकल स्किल्स एंड ब्लॉगिंग एंड फोर्थ टॉपिक है समरी राइटिंग एंड नोट, ठीक है? तो अभी हम फर्स्ट टॉपिक जो है, लेट अस डू स्टार्ट विद दैट ओनली, एंटोनिम एंड सिनोनिम। तो आप सबको मालूम है एंटोनिम सिनोनिम क्या होते हैं? एंटोनिम मीन्स ऑपोजिट वर्ड, ठीक है? एंड सिनोनिम मीन्स सेम Similar words. इन मीनिंग, ठीक है? मैंने गूगल क्लासरूम में आपको एंटोनिम और सिनोनिम का भी भेजा हुआ रहेगा। नाउ फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कोल्ड, तो कोल्ड का एंटोनिम क्या होगा? हॉट। हॉट, ठीक है? ये ऑपोजिट हो गया ना, तो कोल्ड का एंटोनिम क्या हुआ? हॉट। ठीक है, सबको समझ आ रहा है ना? कोल्ड का एंटोनिम क्या हुआ? हॉट। फिर कोल्ड का सिनोनिम क्या होगा? चिल्ड। हाँ, तो कोल्ड का सिनोनिम क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, चिल्ड, कूल, ठीक है? कूल भी हो सकता है ना? यस मैम। फिर चिली, ठीक है? इज इट क्लियर? तो एंटोनिम और सिनोनिम समझ आया आपको ना क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल इफ आई से समर और गुड, गुड का एंटोनिम क्या होगा? बैड। बैड। फिर गुड का सिनोनिम क्या होगा? नाइस। हाँ,
नाइस, और क्या हो सकता है? फेयर, ठीक है ना? इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। एंटोनिम सिनोनिम सबको क्लियर हुआ ना, क्या होता यस। है? हाँ Yes. हाँ। अभी आपको स्क्रीन पे सिलेबस दिखाई दे रहा है? नो मैम। जो आप टाइप कर रहे हो वो दिख रहा है। सिलेबस नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ तो आज स्क्रीन शेयरिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, पता नहीं क्या आ रहा है। ओके, तो एंटोनिम मीन्स the words which are opposite in meaning, and synonym means words having the same meaning. ठीक है? अभी मैं आपको गूगल क्लासरूम शेयर करती हूँ, जहां पे मैंने एंटोनिम सिनोनिम आपको भेजा है। मुझे ऐसे याद है कि मैंने एंटोनिम सिनोनिम भेजा है। तो कैन मैंने गूगल क्लासरूम में एंटोनिम सिनोनिम का पूरा लिस्ट भेजा है, तो आप वहां ओके मैम। पढ़ सकते हो। ठीक है? यस मैम। हाँ, तो अभी लेट अस डू अ लिटिल ऑफ एंटोनिम सिनोनिम्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट का एंटोनिम क्या होगा? डिसऑनेस्ट, करेक्ट? तो बहुत सारे एंटोनिम आप प्रीफिक्स ऐड करके भी, जैसे डिस ऐड किया, ठीक है? जैसे कंप्लीट है, कंप्लीट का एंटोनिम क्या होगा? इनकम्प्लीट। तो आपने कंप्लीट में ऐड किया ना इन, ठीक है? सिमिलरली ऑनेस्ट में आपने डिस ऐड किया। तो बहुत सारे एंटोनिम हम एडिशन के साथ भी बना सकते हैं, ठीक है ना? अच्छा, ऑनेस्ट जो है, कंप्लीट, इसका सिनोनिम बना सकते हो ऑनेस्ट का और कंप्लीट का? ऑनेस्ट, ट्रूथफुल। हाँ, ओके, और कोई और बताएगा कंप्लीट का क्या होगा? कंप्लीट का सिनोनिम क्या होगा? Done. हम बोलते हैं ना वर्क इज ओवर, ठीक है? गेटिंग ओवर, ठीक है? ओवर। वैसे इज इट क्लियर? आपको समझ आया सिनोनिम एंटोनिम का बारे में सबको? क्योंकि आज स्क्रीन शेयरिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए सिलेबस भी शेयर नहीं कर पाई, गूगल क्लासरूम भी शेयर नहीं हो रहा है, ठीक है? बट स्टिल वी विल डू सम टॉपिक्स, लेट मी डू। अभी सपोज हमको
एंटोनिम करना है, ठीक है। एप्रिशिएशन, ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या होगा और इसका सिनोनिम क्या होगा, बताओ मुझे। एप्रिशिएशन का एंटोनिम क्या होगा? डेप्रिशिएशन, क्रिटिसिज्म, है ना? यस मैम। और बैकबाइटिंग, इस तरह से। वैसे बहुत सारे बन सकते हैं बट आपको करेक्ट जो है वो यूज करना होता है। तो एप्रिशिएशन का सिनोनिम एंटोनिम होगा डेप्रिशिएशन, और उसका वो क्या होगा सिनोनिम? वैल्यू। वैल्यू, वैल्यू नहीं होगा। इसका सिनोनिम होगा एप्रिशिएशन का प्रेज, है ना? ठीक है, इज इट क्लियर? समझ आ रहा है आपको? क्या मैम? यस मैम। हाँ, तो आपको ये एंटोनिम सिनोनिम अभी एग्जाम में आपको गुड बैड नाइस अनफेयर ऐसे नहीं आएगा ना, थोड़े, क्योंकि आप FY BA में हो, फर्स्ट सेकंड के स्टूडेंट नहीं हो, तो थोड़ा आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। इज इट क्लियर कि आपको कैसे कैसे वो करने हैं? मैं आपको बताती हूँ कि आपको एग्जाम में क्या क्या आ सकता है। का डिस्क्रिप्शन नहीं आया। हाँ, इसका डिस्प्रेशन, डेप्रिशिएशन यस, आएगा क्या? क्या? मुझे समझा नहीं क्या पूछ रहे हो आप। अभी बिगिनिंग वर्ड जो है, बिगिनिंग का सिनोनिम क्या होगा और बिगिनिंग का एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम एंड। हाँ, एंड हो गया एंटोनिम, और सिनोनिम क्या होगा? इनिशिएटिव। इनिशिएटिव तो ठीक है, बट बिगिनिंग, Start. स्टार्टिंग, ठीक है। एंडिंग, एंडिंग, हाँ, एंडिंग, यस, यस। बिगिनिंग का एंटोनिम होगा एंडिंग और सिनोनिम होगा स्टार्टिंग। अगर बिगिन वर्ड होता तो हम एंड लिखते, और बिगिन होता तो सिनोनिम स्टार्ट लिखते, क्लियर। बट बिगिनिंग है तो स्टार्टिंग, बिगिनिंग है तो एंडिंग। इज इट क्लियर? आपको ये सब भी ध्यान रखना है। इज इट क्लियर? मैम, हाँ बोलो। यस मैम। अभी ट्रू का एंटोनिम क्या होगा? फॉल्स। फॉल्स, ठीक है। सिनोनिम क्या होगा? राइट। राइट। राइट, राइट क्यों होगा? ठीक है। राइट का एंटोनिम क्या होगा? रॉन्ग। रॉन्ग, ठीक है। सिमिलरली राइट का सिनोनिम क्या होगा? करेक्ट। यस, ठीक है। समझ करेक्ट, आया ना आपको एंटोनिम सिनोनिम क्या होते हैं? यस मैम। कुछ कंफ्यूजन नहीं है ना? No, ma'am. नो। सबको समझ आ रहा है? Yes, ma'am. अभी देखो गूगल क्लासरूम में मैंने आपको एंटोनिम सिनोनिम का लिस्ट भेजा है, ठीक है। मैम। मैंने लास्ट जनवरी में ही भेजा था। अभी मैं आपको, क्योंकि स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है ना, इसलिए दिखा नहीं पा रही हूँ। मैम आपका लास्ट मुझे 15 दिसंबर का दिखा रहे हैं जो अरे वीडियो। 15 दिसंबर का नहीं, 30 जनवरी का देख, 30 जनवरी 2021 का उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं दिख रहा है मुझे। दिखेगा। नहीं दिख रहा है।
अभी मेरा स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है करके मैं नहीं दिखा पा रही हूँ ना, सिलेबस भी नहीं शेयर कर पाई, ये ना नहीं तो व्हाइट ऑफिशियल बोर्ड ही शेयर कर पा रही हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं दिखाऊंगी। मेरा लेक्चर तो हफ्ते में 3 दिन आता है ना, तो डोंट वरी। मैम ऑफिशियल ग्रुप में भेज दीजिए ना, ये लिंक हाँ ग्रुप में भेज दीजिए ना, क्या? यही जो आप भेजे थे। अभी मैं ग्रुप में कुछ नहीं भेजती हूँ, सब गूगल क्लासरूम में ही भेजती हूँ। ठीक है। सो एंटोनिम मीन्स सिमिलर मीनिंग एंड एंटोनिम मीन्स अपोजिट मीनिंग एंड सिनोनिम मीन्स सिमिलर मीनिंग। ठीक है ना? यस तो आपको जब आप करते हो कुछ भी, तो आपको एंटोनिम और सिनोनिम पता होना चाहिए। अभी फॉर एग्जाम्पल ऑफलाइन है, उसका उसका वो क्या होगा? ऑनलाइन। एंटोनिम क्या होगा ऑफलाइन का? ऑनलाइन। ठीक है। Online. हाँ, बट ऑनलाइन और ऑफलाइन का सिनोनिम क्या होगा? वर्चुअल। ऑनलाइन का सिनोनिम तो वर्चुअल, डिजिटल, ठीक है, हो जाएगा। बट ऑफलाइन का सिनोनिम क्या होगा? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक, है ना? ऑफलाइन का सिनोनिम क्या होगा? फिजिकल, ठीक है, फेस टू फेस, रूबरू। हाँ वो हिंदी में होएगा, इंग्लिश में बात कर रहे हैं हम लोग, इंग्लिश का लेक्चर है ना। इज इट क्लियर? यस मैम। सब स्टूडेंट्स को समझ आया? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ आया सिनोनिम एंटोनिम तो पूछ लो, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। ओके, सो ये हमारा एक टॉपिक हो गया। बट मैं गूगल क्लासरूम में मैंने जो लिस्ट शेयर की है, अगर आप उसको पढ़ोगे तो आपको उसमें बहुत सारा कुछ मिलेगा। ओके, मैंने एक बहुत लंबी लिस्ट भेजी है एंटोनिम सिनोनिम की, तो आपको पढ़ने से बहुत, और हम और भी करेंगे, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एंटोनिम सिनोनिम का और भी करने वाली हूँ। So now I am ending the शुक्रिया। lecture. Okay, we will meet in the next